Hi, in the last class, we were studying this chapter from political science, and the book is first one, Indian Constitution at Work, chapter number 3, Election and Representation. In that one, we were talking about the system of conduction of elections in India. In that one example I've taken to tell you about one system of conduction of election, that is first past the post, FPTP. One example I've told you that in the 1984 Lok Sabha elections, Congress got more than 80% seats, winning. They won in more than 80% seats in the Lok Sabha election, and that is near about that is 415. But if you look to this data which is provided here, that Congress has secured 48% votes of the country, but they have got more than 80% seats in the Lok Sabha. But if you look to the BJP has got 7.4% votes of the total votes polled in the elections, but they got only 2 seats in the Lok Sabha, whereas Telugu Desam Party, they got 4.1% votes, but they got 30 seats in the Lok Sabha. Percentage of votes is less than BJP, but they have got more number of seats in the Lok Sabha. So ये is how this has happened. कैसे हुआ ये? This thing has happened in our country because our country follow a special system of method of election. इस system के अंदर our country is divided into 543 constituencies. Each constituency has to elect one representative for them, and candidates who gets the maximum highest number of votes in that constituency, that person is declared elected from that constituency. One thing very important to be noted here, that in this system, who gets the maximum votes, that person is winner, and the person who gets the high votes in comparison to all the other candidates will be declared winner. And winning candidate के लिए कोई जरूरी नहीं है कि he will have the majority of the votes. This method is called first past the post system, FPTP. Means in the electoral race, the person who will first of all cross the winning post will be declared winner. इस method को it is also known by one more name, that is plurality system, PLURALITY, plurality system भी बोलता है. And this method is written in our constitution. This method of election is prescribed in our constitution. Now this example which I was talking to you to tell something more about the first past the post system. In this one you can see that Congress has won greater number of seats in comparison to the share of votes. जितने वोट मिले उससे कई ज़्यादा सीटें उनको मिली. और ऐसा क्यों हुआ? Because in many of the constituencies of India, where the candidates won of the Congress party, they secured less than 50% of the votes. देश में इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी के जितने वोटर खड़े हुए थे, उन्होंने इलेक्शन के अंदर जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने फाइट किया था, they have got less than 48% of the votes. इसलिए they have got less than 50% of votes, इसलिए ये 48% votes को बता रहा है. और
जब भी in the election when there are several candidates, तो जो winning candidate होगा, full chances are there that they will get the less than 50% of the votes. एक से ज़्यादा बहुत सारे candidates होंगे, तो candidate को पूरी chances है that he will get less than the 50% of the votes. वो vote which are received by the losing candidates ने जिन votes को जीता है वो waste हो जाएंगे. Why? Because from these votes these losing candidates or party are not going to win any seat in the Lok Sabha, तो वो waste हो गए. मान लो एक और तरीके से इसको समझाने के लिए, मान लो suppose a party has got 25% of the votes in every constituency. एक पार्टी को इलेक्शन में 25% वोट्स मिलता है हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, तो इन दैट सिचुएशन, अच्छा इसके साथ एक कंडीशन और अटैच है, मतलब all the other candidates who are also standing in the election and they are getting less than 25% of the votes in every constituency. उस केस के अंदर मतलब उनको सबसे ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, बाकी सब लोगों को कम मिल रहे हैं. उस केस में क्या होगा, पार्टी जो है they can win all the 25 seats. वो सारी सीट उस एरिया में जीत लेंगी, जबकि दे आर हैविंग द 25% ऑफ वोट्स ओनली और इवन लेस. उनके पास 25% वोट ही हैं और उससे भी कम हो सकता है, लेकिन उनके वोट जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनसे ज़्यादा हैं, सो दे विल बी डिक्लेयर्ड विनर. थ्रू दिस एग्जाम्पल दे हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू the first way of conducting the election, that is first pass the post system. सबसे पहले जो winning post को cross करेगा that person will be declared winner. electoral race, जैसे रेस में होता है वैसे ही चुनाव की दौड़ में. Now one more way they have told here about the conduction of elections, system of conduction of election, and that is known as proportional representation. उसको proportional representation बोलते हैं. वर्ल्ड के अंदर इसराइल, this country is following this system. It's very difficult, it's a different system of election, and इसराइल के अंदर एक बार वोट्स काउंट हो जाते हैं, इफ द वंस वोट्स आर काउंटेड, आफ्टर दैट ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सेकेंड मेथड ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन है. एक बार वोट हो जाने के बाद ईच ऑल द वोट्स आर काउंटेड एंड ईच पार्टी इज अलॉटेड सीट इन द पार्लियामेंट according to their share of votes. जितने वोट्स उन्होंने हासिल किए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको पार्लियामेंट में सीट मिल जाती है. They have told this one through the story of Israel. Proportional representation इसराइल फॉलो करता है और उनकी जो पार्लियामेंट है उसका नाम है Knesset, KNESSET, Knesset. उनकी लैंग्वेज है हिब्रू, HEBREW. In Hebrew language, Knesset means gathering or an assembly. वहाँ से इस वर्ड को लिया गया है. इसके अंदर you can see that every party, those who are contesting election, whatever percentage of votes they secured, they got in the election, according to that percentage
they are given the seats in the parliament of the country. इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोलता है. इस सिस्टम के अंदर वोट्स आर गिवन फॉर द पार्टी एंड नॉट फॉर द कैंडिडेट्स. पार्टी के लिए वोट डाले जाते हैं, कैंडिडेट्स के लिए नहीं डालते हैं. बिफोर इलेक्शन every party prepare their one list of the candidates according to their preference, and after the declaration of the result they nominate those candidates nominee for the member of the parliament according to their preference list. हर पार्टी ने अपनी एक प्रेफरेंस लिस्ट बना लेते हैं इलेक्शन से पहले, और जितनी सीट उनको, जितना प्रपोर्शन पार्लियामेंट के अंदर मिलता है उसके अकॉर्डिंग दे प्रोवाइड द सीट. एग्जाम्पल में आप यू कैन सी हियर नेम ऑफ द पार्टी लिक्विड, परसेंटेज ऑफ वोट, that is first column में they have given percentage of vote in Israel country is received by this party, that is 23.40. Number of seats which are given to them in the Lok Sabha to this party is 30. Or from this to detail you can easily take out what percentage of total seats were given to this particular party. You can see in this country Israel, population of voters, मतलब population तो 100% उसको consider कर लिया, और total number of seats in the parliament is 120. जितना percentage of vote उन्होंने जीता उसको according they have been given the seats in the parliament. इस सिस्टम को, दिस सिस्टम इज नोन एज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. मतलब सबको बराबर का मौका देने की कोशिश की जाती है. किसी को इवन स्मॉलर पार्टी ऑल्सो गेट द चांस टू बिकम अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, जिनका एक छोटा स्मॉल बेस होता है, सपोर्ट ज़्यादा नहीं होता उनके पास लोगों का. They also get the chance to participate in the election. इसके अंदर in this one इसराइल के अंदर, मैं ये एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ what is proportional representation. In this country a party should get minimum 3.25% votes to get eligible to get seats in the legislature. इतना परसेंटेज अगर वोट मिलेगा तो then only they are provided seat in the parliament of the country. And ये जो सिस्टम है, this is system also always create create a problem of multi-party situation of multi-party coalition गवर्नमेंट को, कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को इसके अंदर मेजॉरिटी हासिल नहीं हो रही है, तो वो दूसरों का सपोर्ट लेकर दूसरी पार्टीज का दे फॉर्म द गवर्नमेंट. दैट गवर्नमेंट इज कॉल्ड कोलिएशन पार्टी. तो मल्टी पार्टी कोलिएशन गवर्नमेंट इज सीनियर. और एग्जाम्पल से यू कैन वेरी मेक आउट दैट द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसके दो वेरिएशंस होता हैं. मतलब देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. एक जो होता है विच इज़ फॉलोड बाय इज़राइल, नीदरलैंड, उसके अंदर होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू वन कॉन्स्टिट्यूएंसी. पूरी इतने सारे मेंबर्स डालिए, दे ऑल क्या बोलते हैं उनको, दे
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर दो मेथड्स को फॉलो किया जाता है, और इजराइल और नीदरलैंड उसमें से फर्स्ट वन वाला जो होता है, दो एक और है, पहले फर्स्ट टू जो बहुत सिंपल हैं, थर्ड वन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जो इंडिया फॉलो करता है। फर्स्ट वन में नीदरलैंड और इजराइल जो फॉलो करते हैं वो क्या करता है, एंटायर कंट्री को दे डिवाइड इनटू द constituencies, and seats are allocated to every party according to the share of votes in the national election. In this system, second method जो होता है, ये तो पूरे फर्स्ट मेथड के अंदर होल कंट्रीज divided into one constituency, and seats are allocated according to the share of votes achieved by the that particular party in the election. Second method जो है, in the second method they have told countries divided into several multi-party multi-member constituencies. मल्टी-मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज में उसको कन्वर्ट किया जाता है, और ये जो थ्योरी है इट इज़ फॉलोड बाय द टू कंट्रीज और भी हैं, बट अभी इतना ही काफ़ी है। सेकंड मेथड जो फॉलो किया जाता है उसको उसके अंदर बोलते हैं मल्टी, दैट इज़ कॉल्ड मल्टी मेंबर, सेवरल मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज। ऐसे बहुत सारे सेवरल कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर कंट्रीज़ को डिवाइड कर दिया जाता है, और एग्जांपल द कंट्रीज़ विच आर फॉलोइंग दिस मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज अंडर द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दोज कंट्रीज़ का एग्जांपल है यहाँ पे दो दिए, अर्जेंटीना जो साउथ अमेरिका में है, पोर्चुगल विच इज़ पार्ट ऑफ द यूरोप, एंड ईच पार्टी जो होती है यहाँ पे दे क्या बोलते हैं आपको, ईच इसके अंदर अगर आपको सीट हासिल करनी है तो दैट पार्टी शुड गेट एटलीस्ट 3.25% वोट्स, इजराइल के केस में है। और इनके यहाँ पर इनके इस केस ऑफ सेकेंड वेरिएशन के केस के अंदर नीदरलैंड, और इन केस ऑफ क्या नाम है आपका अर्जेंटीना, मल्टी पार्टी सिस्टम में कंट्री को बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है, लार्ज एरियाज होते हैं बड़े बड़े। इन दिस वन व्हाट दे डू, प्रेफरेंस आर एक्सरसाइज बाय द पीपल, एंड वोट्स के बाद जितने परसेंटेज ऑफ वोट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग seats are allocated in the constituency according to the on the basis of the क्या बोलते हैं, on the basis of the seat in that particular constituency. इस सिस्टम के अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर पार्टी जो होती है दे प्रोवाइड द क्या बोलते हैं, दे प्रोवाइड द वोट, people give the vote to the party, not to the candidate. लोग जो हैं वो वोट जो है वो अपना पार्टी को देता है, एंड वो कैंडिडेट को नहीं देता है, और लाइक दैट रिप्रेजेंटेटिव जो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो इलेक्ट होता है दैट बिलोंग्स टू द डिफरेंट पार्टीज। इंडिया ने भी दिस सिस्टम इज अडॉप्टेड बाय आवर कंट्री ऑल्सो इन अ लिमिटेड मैनर, और हमारी कंट्री के अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शंस के अंदर इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये मैंने आपको बताया था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के 3 वेराइटीज़ होती हैं। एक तो होल कंट्रीज टेकन एज अ वन कॉन्स्टिट्यूंसी, और सेकेंड वन में दे टेक मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज। कंट्री को कई बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, और फिर उसके अंदर अकॉर्डिंग टू द नंबर कैंडिडेट्स आर
elected. थर्ड तो जो वेरिएंट है वो जो तरीका है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, दैट इज डन बाय द इंडिया उसको फॉलो करता है. इंडिया इज लिमिटेड वे में इनडायरेक्ट इलेक्शंस को फॉलो करता है. और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये हमारा जो सिस्टम हमको बताया हुआ है, और इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स वन, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है ये ऑफ द इलेक्ट ऑफ फॉर इलेक्टिंग द क्या बोलते हैं कैंडिडेट्स. इंडिया के अंदर दिस टाइप ऑफ सिस्टम proportional representation is followed for the election of the members of the Rajya Sabha, for the election of President of India, for election of Vice President of India, and for the members of the विधान परिषद. विधान परिषद आपको मालूम है जैसे सेंटर में लोकसभा एंड राज्यसभा इज देयर, वैसे ही इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं, नॉट ऑल द स्टेट्स, they are also having the second body. वहाँ पर ज़्यादातर स्टेट में तो ओनली वन बॉडी इज़ देयर, विधानसभा. लेकिन इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र. they have got two houses under the they have got two houses in this system. इसमें दो हाउसेस होते हैं. एक होता है राज्य से सेंटर में राज्यसभा होता है, वैसे स्टेट के अंदर नाम दिया जाता है विधान परिषद. उसके लिए जो मेंबर्स जो इलेक्ट किए जाते हैं वो इसी सिस्टम से इलेक्ट किए जाते हैं, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. फॉर एग्जांपल वी टेक हाउ द मेंबर्स ऑफ द क्या बोलते हैं आपको राज्यसभा आर इलेक्टेड इन आवर कंट्री. ये थर्ड वेरिएंट है, अभी मैंने आपको बताया था आपको फॉर इलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स इन आवर कंट्री. इसके अंदर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को यूज़ किया जाता है, STV. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के अंदर एक ही वोट होता है, वो आगे से आगे ट्रांसफ़र किया जाता है टू कैलकुलेट द वोट्स. हर स्टेट का एक स्पेसिफिक कोटा होता है राज्यसभा के अंदर फॉर द मेंबर्स. जैसे राजस्थान के अंदर फॉर राज्यसभा वी हैव गॉट 10 सीट्स लाइक दैट. किसी स्टेट के पास 20, किसी के पास 31. सबसे ज़्यादा सीट इंडिया के अंदर राज्यसभा के अंदर वी हैव गॉट ऑफ द दिस वन उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ इंडिया. जो छोटे स्टेट्स हैं वहाँ पर तो ओनली 1 सीट इज़ देयर. और मेंबर्स जितने भी MLAs होते हैं दे आर द वोटर्स एंड इन स्टेट के अंदर, सिर्फ उसी स्टेट के अंदर. एंड तो लाइक दैट मेंबर्स ऑफ द क्या बोलते हैं आपको विधानसभा, मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज डू द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स फॉर देयर स्टेट, अपने स्टेट के लिए. वोटर्स उसके स्टेट के जो MLA होते हैं दे आर द वोटर्स. और वोटर्स जो होता है, एवरी वोटर जो होता है दे हैव टू गिव द रैंक टू द कैंडिडेट्स, उनको कैंडिडेट्स को वोट देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर प्रेफरेंस. उसको जो पसंद आता है उसके हिसाब से उन कैंडिडेट्स को वो रैंकिंग करता है. और विनर को डिक्लेयर करने के लिए क्या सिस्टम है, कैंडिडेट मस्ट गेट अ मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स. एक कैंडिडेट के पास एक मिनिमम वोट का कोटा आना चाहिए, और वो अगर आ गया तो दैट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड विनर. उसके लिए जो फॉर्मूला लगाया जाता है, जो यहाँ पे स्लाइड में यू कैन सी, दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड टोटल वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड प्लस 1. इसका जो इक्वल टू करके जो आंसर आएगा उसको +1 कर दो, तो यू विल गेट द मिनिमम कोटा
for the votes. फॉर एग्ज़ाम्पल लेता है, एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज 4 राज्यसभा मेंबर्स हमारे राजस्थान स्टेट विधानसभा से इलेक्ट होने हैं. हमारे यहाँ पर 200 MLAs आर देयर और विनर उस कैंडिडेट को डिक्लेयर करेंगे जो 41 वोट्स हासिल करेगा. सिंपल है. तो हमारी कंट्री के अंदर MLA 200 हैं, सॉरी राजस्थान के अंदर वी हैव गॉट 200 MLA, तो 200 अपॉन 4 कैंडिडेट्स को राज्यसभा मेंबर्स 4 को इलेक्ट करना फॉर राज्यसभा, तो नीचे 4 आएगा और 4 + 1 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो 5 हो जाएगा. तो 200 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 40 और 40 में +1 करोगे तो 41. दैट इज कोटा, मिनिमम कोटा to get the votes and to win the election of राज्य सभा. एक बार वोट्स जो सारे काउंटिंग हो जाते हैं, इट इज़ डन, और इसके अंदर फर्स्ट प्रेफरेंस को वैल्यू दी जाती है. मैंने आपको बताया ना आपकी जो लोग वोट डालने आते हैं MLAs, उनको एक लिस्ट प्रोवाइड की जाती है. उस लिस्ट के अंदर दे आस्क टू गिव द प्रेफरेंस ऑफ द वोटर्स. कोई किसी कैंडिडेट को फर्स्ट डालेगा, को किसी को सेकंड डालेगा, को किसी को थर्ड डालेगा. इसमें जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती हैं दे आर काउंटेड एंड जिस कैंडिडेट को 41 क्रॉस उससे ज़्यादा मिल जाएंगी तो दैट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड विनर. ये और बेहतर तरीके से एग्जांपल से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये कैसे किया जाता है. कुछ और बातें रिगार्डिंग द प्रोपोर्शनल सिस्टम फॉलोड इन इंडिया फॉर द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स. इनडायरेक्ट होता है ये इलेक्शन, और वोट्स जो इसमें जो काउंट किए जाते हैं दैट इज दे आर डन ऑन द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स. और उन कैंडिडेट्स के लिए जो उस कैंडिडेट ने हासिल किया उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस कहाँ पे आई उसको देखा जाता है उसके अंदर. और एक बार इफ वन द काउंटिंग ऑफ ऑल द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स आर डन, देन ये चेक किया जाता है इफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव गॉट फेल टू फुलफिल द कोटा. जितने कैंडिडेट्स कोटा के लिए ज़रूरी थे वो अगर नहीं हो पाए तो फिर ये प्रोसेस फिर वापस से चलाया जाता है और सेम प्रोसेस फॉलो किया जाता है. कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड द लोएस्ट वोट्स, उसके अंदर जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा कम वोट आएंगे दैट पर्सन, उसकी जो फर्स्ट चॉइसेस थी फर्स्ट वो सब एलिमिनेट कर दी जाएगी एंड हिज वोट्स और हर आर ट्रांसफर्ड, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा टू दोज हु आर मेंशन एज सेकंड प्रेफरेंस इन देयर बैलेट पेपर्स. जिनको सेकंड प्रेफरेंस मिली है वो वोटर्स के द्वारा, MLA के द्वारा, उनको उसके वोट्स ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे. बिकॉज वो लोग एक तो एलिमिनेट नहीं हुए हैं और दे आर सेकेंड प्रेफरेंस, मतलब वो अब फर्स्ट प्रेफरेंस हो गए क्योंकि जो लोएस्ट थे उनको तो बाहर कर दिया है और फर्स्ट प्रेफरेंस में से कोई या तो अलर्ट हो गया है या नहीं हुआ तो और कुछ कैंडिडेट्स को अलर्ट करना है. तो ये फॉर्मूला उसके अंदर फॉलो किया जाता है टू सेकेंड प्रेफरेंस वाला. मतलब सेकेंड प्रेफरेंस को बैलेट पेपर के अंदर फिर सेकेंड नेक्स्ट राउंड में जब अगर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं मिलता है तो सेकेंड प्रेफरेंस जो होती है दैट इज़ टेकन एज फर्स्ट प्रेफरेंस. और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा टिल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर नॉट आर नॉट डिक्लेयर्ड इलेक्टेड. जब तक जितने ज़रूरत है उतने नहीं हुए हैं तब तक ये चलता रहता है. दैट इज़ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वेरी कॉम्प्लेक्स वन. इसका एक मैं वीडियो बनाऊंगा
to explain you with examples. यहाँ पे बुक के अंदर तो पेज नंबर बुक के अंदर जो ये पेज नंबर है, पेज नंबर इज़ आई थिंक 60. उस पेज के अंदर तो उन्होंने बस ये थ्योरी दे दी है और फॉर्मूला सही है, लेकिन उसमें क्लियर नहीं होगा. तो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस वन टू एक्सप्लेन दिस वन कि हाउ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज़ वर्किंग फॉर द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स इन आवर कंट्री. नाउ अभी तक मैंने आपको 2 सिस्टम ऑफ इलेक्शंस बताए, मेथड्स ऑफ सिस्टम फॉर इलेक्टिंग द कैंडिडेट्स. एक बताया था FPTP और दूसरा बताया था PR सिस्टम ऑफ इलेक्शन. तो इनमें कंपेयर करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द FPTP एंड द proportional representation system of election. That is given on page number 59 in your book. First point, FPTP में आपको दिख रहा है कि country is divided into small geographical units, and these geographical units are small geographical units are called constituencies or districts. जबकि proportional representation system के अंदर either whole country, entire country is converted into a single constituency, or country is converted into large geographical units as the constituency of the country. Second point में they have told here that in FPTP one representative is elected from one constituency, but in the case of proportional representation more than one representative is elected from one constituency. वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितने लोगों को मेंबर्स बनाना है फॉर द रूलिंग बॉडी. थर्ड में ये बताया कि जो वोटर होते हैं वो FPTP के अंदर दे वोट फॉर द कैंडिडेट, बट इन द पब्लिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर कैंडिडेट जो वोटर्स होते हैं दे वोट फॉर द पार्टी. ये डिफरेंस बता रहा हूँ दोनों के बीच में. और एग्ज़ाम में यू कैन राइट दिस पॉइंट्स, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो ये 5 पॉइंट लिखोगे तो यू विल गेट द मार्क्स. और 1 2 3 नंबर 4 in the FPTP party gets more number of seats than the votes in the legislature. चुनाव में पार्टी को जितने वोट मिलते हैं उससे ज़्यादा सीट पार्टी विन कर लेती है, जीत जाती है. लेकिन PR के अंदर ये सिस्टम नहीं फॉलो होता है. इन दिस सिस्टम seats in the legislature are according to the percentage of the votes that party has got. उस पार्टी ने कितने वोट हासिल किया उसके अकॉर्डिंग सिस्टम होता है. और 1 2 3 4 and 5 1 country candidate who wins the election may not get the majority votes. जो इलेक्शन जीतेगा जरूरी नहीं है कि वो मेजॉरिटी वोट्स हासिल करे. मेजॉरिटी वोट्स का मतलब है 50% + 1. मान लो 100 वोट्स हैं तो 50% हो गया 50, 50 + 1 51. तो इतने जितने पड़ेंगे टू विन द इलेक्शन. लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द वोट जिसको मिलता है दैट कैंडिडेट wins. Or last point, they have told the name of example of the countries which are following this one. FPTP जो फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर एक तो इंडिया है और नेक्स्ट वन है यूनाइटेड किंगडम. और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक तो कंट्री का नाम है इज़राइल, एक कंट्री का नाम है क्या नाम है नीदरलैंड. वो इसको फॉलो करता है. इज़राइल, Netherlands, they follow this system, proportional representation. Thank you. Have a nice day. Or in the next video, I will tell you the about the ये video to explain you what do you mean by single transferable vote. Thank you and have a nice day.